بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی. مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ. شریمد بھگوت گیتا یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان. دوسرا باب، دوسرا ادھیائے. علم دین کی پیروی نہ کرنے سے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ملتا ہے. سنجے نے دھرت راشٹر سے کہا، جب کرشن نے رحم سے بھرے ہوئے غمزدہ ارجن کو اور اس کی آنکھوں کو پوری طرح آنسوؤں سے بھری ہوئی دیکھا، تب مدھوسودن یعنی کرشن نے یہ جملے کہے. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ خدائی قوانین یعنی دین کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے تمہارے دل میں یہ جہالت بھرا فیصلہ کہاں سے آیا؟ اے ارجن، علم دین میں جن لوگوں نے فضیلت اور ترقی حاصل نہیں کی ہے، ان کی یہ جہالت جنت سے نہ جڑنے اور دنیا میں ذلت کی وجہ بنتی ہے. اے پارتھ یعنی ارجن، نہ مردی اور بزدلی کی راہ مت اپناؤ، یہ بہت بری چیز ہے جو تمہیں زیب نہیں دیتی. اے پرم تپ یعنی ارجن، دل کی اس کمزوری کو چھوڑ کر جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ارجن نے اپنے استاد اور رتبان کرشن سے کہا، اے مدھو کو ہلاک کرنے والے یعنی کرشن، جنگ میں میں کس طرح بھیشم اور درون پر تیروں سے الٹ کر حملہ کروں گا. اے دشمنوں کو ہلاک کرنے والے کرشن، یہ لوگ میرے لیے احترام کے قابل ہیں. بے شک اس دنیا میں ان عظیم تجربہ کار اساتذہ کو قتل نہ کر کے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں بھیک مانگ کر اپنی ضروریات پوری کر لوں. عیش و آرام کی چاہت میں ان اساتذہ کو ہلاک بھی کر دوں، لیکن عیش و آرام کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے شک مجھے یہ دنیا خون سے آلودہ ملے گی. ہم تو وہ بھی نہیں جانتے جو ہمارے لیے بہتر ہے. یا تو ہم جیت جائیں گے یا وہ ہم پر فتح پائیں گے، کیونکہ سب دھرتراشٹر کے بیٹے ابھی تو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم جیتے تو بلا شبہ ان کو مار کر ہم کبھی نہیں جینا چاہیں گے. ذہنی سکون دنیا سے نہیں بلکہ دین سے حاصل ہوتا ہے. ارجن نے اپنے استاد اور رتبان کرشن سے کہا، میری اپنی فطرت میں رحم دلی ہے جس کی وجہ سے میں غلطی کر رہا ہوں. اس لیے تم سے دین حق کو جاننے کے لیے میرا دل بے چین ہے. اب تم سے وہ خدا کے احکامات پوچھ رہا ہوں جو میرے لیے زیادہ بہتر ہیں. اچھی طرح فیصلہ کر کے مجھ سے کہو، مجھ کو صرف تمہارا سہارا ہے اور میں تمہارا شاگرد بھی ہوں، اسی لیے میری رہنمائی کرو. اس سرزمین پر خواہشوں بھری، دشمنوں سے خالی، فرشتوں یعنی دیوتاؤں سے بھری ہوئی اور تمام رکاوٹوں اور تکلیفوں سے خالی سب سے اعلیٰ حکومت بھی مجھے مل جائے تو بے شک مجھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو میرے اس غم کو دور کر سکے گا یا ہلکا کر سکے گا. سنجے نے دھرت راشٹر سے کہا. پرنتپ یعنی ارجن نے رشیکیش یعنی کرشن سے اس طرح کہا، اے گووند یعنی زمین پر امن قائم کرنے والے کرشن، سچ تو یہ ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا. اس طرح کہہ کر گڈاکیش یعنی ارجن چپ ہو گیا. اس کے بعد اے بھارت یعنی دھرت راشٹر، رشیکیش یعنی کرشن نے دونوں فوجوں کے درمیان اس غمزدہ ارجن سے مسکرا کر اس طرح یہ باتیں کہیں. زندگی، موت، راحت اور مصائب کی حقیقت. صبر کا صلہ جنت ہے. خدا، دنیا اور آخرت میں فرق. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے ارجن،
तुम अक्ल सलीम रखने वालों की तरह बातें भी कर रहे हो, लेकिन उनके लिए गमजदा हो जिनके लिए गमजदा नहीं होना चाहिए, जिनकी अभी जान गई है और जिनकी जान नहीं गई है। इन दोनों के लिए उल्मा गमजदा नहीं होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा है जब तुम जैसे दीन हक को जानने के तालिब ना रहे हों और मैं खुदा ना रहा हूं और इन जैसे इंसानों के ऊपर जुल्म करने वाले बेदीन ना रहे हों, और बिलाशुबा मुस्तकबिल में भी इससे आगे कोई दौर ऐसा नहीं है कि हम सब ना रहें। जिस्म रखने वाली मखलूक यानी इंसान के जिस्म को दुनिया में पैदाइश के बाद जिस तरह बचपन, जवानी और बुढ़ापा खुदा की जानिब से मिलता है, उसी तरह जिस्म के अंदर मौजूद रूह को मरने के बाद दोबारा जिस्म हासिल हो जाता है। इसीलिए साबिर शख्स को मौत से जरा भी उलझन और परेशानी नहीं होती। ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, राहत और मसाइब को जितना महसूस करो उतना ही जहन पर असर या एहसास देते हैं, लेकिन इन दोनों का गर्मी और सर्दी के मौसमों की तरह कुछ अरसा के लिए आना और जाना लगा रहता है। ऐ भारत यानी अर्जुन, यही सोचते हुए इनको बर्दाश्त करने की कोशिश करो। ऐ इंसानों में अफजल यानी अर्जुन, जो साबिर इंसान राहत और मसाइब में खुदाई अहकामात पर सब्र के साथ कायम रहता है, बिलाशुबा ये सब हालात उसे बेचैन नहीं कर पाते, और ऐसा शख्स मरने के बाद जहां मौत नहीं होती उस जन्नत के मुकाम को पाने के लायक हो जाता है। बातिल इंसानी जिस्म और ये दुनिया जिनका वजूद में आना दिखाई दे रहा है, ये बाकी नहीं रहने वाले हैं, और हक, खुदा, रूह और आखिरत जिनका वकू होना दिखाई नहीं दे रहा है, बिलाशुबा ये दोनों यकसा नहीं हैं। लेकिन इन तमाम की हकीकत और अंजाम को इल्म दीन पर गहरी नजर रखने वाले बाबसीरत उल्मा ने ही सही तौर पर देखा है। लेकिन तुम उस खुदा को लाफानी समझो जिसके जरिए इस तमाम कायनात का फैलाव है। उस लाफानी खुदा को खत्म करने की ताकत किसी में भी नहीं है। जिस्म, रूह और आखिरत की हकीकत। कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि जिस्म रखने वाली मखलूक यानी इंसान का जिस्म यकीनन खत्म होने वाला है, लेकिन इस जिस्म में लाफानी रूह हमेशा एक ही शक्ल में कायम रहने वाली है और नाकाबिल पैमाइश है। इसीलिए ऐ भारत यानी अर्जुन, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। जो शख्स इस रूह को मारने वाली जानता है और उसे जो शख्स मरने वाली मानता है, तो ये दोनों अशखास रूह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये रूह ना ही किसी को मारती है और ना ही मरती है या मारी जाती है। खुदा के जरिए इंसानी जिस्म में खुदा की डाली हुई रूह न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। ये रूह न कभी वजूद में आई थी, न आई है और न कभी वजूद में आएगी। ये रूह पैदा ना होने वाली, हमेशा रहने वाली, तब्दील ना होने वाली, सबसे कदीम जिस्म के मर जाने पर भी ये रूह नहीं मरती। ऐ पार्थ यानी अर्जुन, जो शख्स इस रूह को पैदा ना होने वाली, लाफानी, हमेशा एक हालत में कायम रहने वाली, ना तब्दील होने वाली जानता है, वो इंसान कैसे किसी को कत्ल कर सकता है और कैसे किसी को कत्ल करवा सकता है। मौत से ना घबराओ, क्योंकि हर इंसान की रूह को नया जिस्म देकर आखिरत में जिंदा कर दिया जाएगा। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि जिस तरह इंसान पुराने फटे हुए कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को पहनता है, उसी तरह रूह भी पुराने बोसीदा मरे हुए जिस्म को छोड़कर आखिरत में दूसरा नया जिस्म हासिल कर लेती है। इस रूह को कोई भी हथियार से टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। इस रूह को आग जला नहीं सकती। इस रूह को पानी गीला नहीं कर सकता। इस रूह को हवा खुश्क नहीं कर सकती। ये रूह अटूट है। ये रूह
जलती नहीं है और न गीली होती है और ये खुश्क भी नहीं होती, और बिलाशुबा ये रूह हमेशा रहने वाली है, हर जगह आने जाने वाली है। ये एक हालत में कायम रहने वाली है, ना भटकने वाली है, ना तब्दील होने वाली है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ये रूह ना दिखाई देने वाली है, ये रूह ख्याल से परे है, ये रूह कभी भी तब्दील नहीं होती। इस तरह इस रूह की हकीकत को तुम जान गए हो, इसीलिए तुम्हें अब जिस्म और जिस्म की मौत के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस रूह को हमेशा पैदा होने वाली या हमेशा मरने वाली भी मानते हो, तो भी ऐ कवि बाजू वाले अर्जुन, तुम्हें इस रूह और इसकी मौत के बारे में इतना गम नहीं करना चाहिए। जो भी पैदा होता है उसकी मौत बेशक अटल है, इसीलिए पैदाइश और मौत से बचा नहीं जा सकता, ये भी अटल है। इसी वजह से तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। ऐ भारत यानी अर्जुन, तमाम मखलूकात अपनी तख्लीक की शुरुआत में दिखाई नहीं देती, सिर्फ दुनियावी जिंदगी के दरमियानी हिस्से में दिखाई देती हैं, और हकीकत यह है कि मरने के बाद फिर दिखाई नहीं देती। तो फिर मखलूकात की मौत का इतना गम करने की क्या जरूरत है? कोई इस रूह को अजूबे की तरह देखता है और कोई इस रूह को अजूबे की हैसियत से भी जानता है, और बेशक कुछ दूसरे लोग इस रूह को अजूबे की तरह सुनते हैं, और सच तो यह है कि कुछ लोग इस रूह को सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ऐ भारत यानी अर्जुन, ये रूह तमाम मखलूकात के अजसाम में मौजूद है और जो हमेशा रहने वाली है। मखलूकात के जिस्मों में मौजूद रूह को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए तमाम मखलूकात की मौत पर तुम्हें इतना ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। फितरी खुदादाद सलाहियतों के मुताबिक काम करना हर इंसान पर फर्ज है। सबकी सलामती वाले निजाम जिंदगी यानी धर्म को कायम करने के लिए जंग करना धर्म युद्ध यानी जिहाद है। सब्र की अहमियत। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि तुम्हारे अपने ऊपर खुदा ने जो अमाल फर्ज किए हैं, शक ना करते हुए सिर्फ उनके बारे में सोचने के अलावा तुम्हें मजीद कुछ सोचना नहीं चाहिए। बेशक एक क्षत्रिय यानी बहादुर के लिए जिहाद करके खुदा के दीन को कायम करने से अफजल कोई दूसरा काम नहीं है। ऐ पार्थ यानी अर्जुन, इस तरह जिहाद का मौका पाना एक क्षत्रिय बहादुर के लिए इंतहाई खुशी की बात है, और वो इसलिए कि अपने आप मिला हुआ ये जिहाद का मौका जन्नत का खुला हुआ दरवाजा है। और बिलाशुबा इस खुदा के दीन को फतेह दिलाने वाला जिहाद नहीं करोगे तो अपने ऊपर फर्ज किए गए इस दीनी फर्ज या काम को ना करने से दुनिया में तुम अपनी इज्जत खो दोगे और तुम्हें गुनाह भी मिलेगा। और बिलाशुबा तुम्हारे इस जिल्लत भरे किस्से और वाक़े के मुतालिक सब लोग हमेशा बातें करेंगे। और अच्छी तरह याद रखो कि जिल्लत मौत से ज्यादा बुरी चीज है। बड़े बड़े सिपहसालार तुम्हें मैदान जंग से डर कर भागने वाला समझेंगे, और जिनके लिए तुम बहुत ज्यादा अनमोल या मानी हुई चीज हो, उनके लिए हकीर और काबिल नफरत हो जाओगे। तुम्हारे दुश्मन भी तनकीद करते हुए तुम्हारे जोर बाजू और ताकत के मुतालिक बहुत सारे जो नहीं कहना चाहिए ऐसे नाजीबा अल्फाज भी कहेंगे। उस वक्त बिलाशुबा इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। ऐ कुंती के बेटे, अगर तुम जिहाद में मारे गए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर फतेह हासिल हुई तो तुम्हें दुनिया का ऐश व आराम भी मिलेगा। इसीलिए जिहाद का पक्का इरादा करके जंग के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुख, नफा नुकसान, फतेह और शिकस्त के हालात में भी सब्र के साथ खुदाई अहकामात की तामील करना तुम्हारा फर्ज है। इसीलिए खुदा की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। इस तरह तुम्हारे हाथों इन जालिमों का कत्ल होने पर भी
तुम्हें गुनाह मिलने वाला नहीं है। इल्म के जरिए खुदा से जुड़ना यानी ईमान बिल इल्म यानी ज्ञान योग या सांख्य योग। शऊर और कल्ब के ईमान को खुदा से जोड़ना यानी कल्बी ईमान या बुद्धि योग। ईमान के फायदे और शिर्क के नुकसानात। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि वेदों के इल्म के जरिए ये खुदा से जुड़ना यानी ईमान बिल इल्म तुम्हें मैंने बयान कर दिया, लेकिन अपनी अक्ल और शऊर कल्ब को जो खुदा से जोड़ना यानी कल्बी ईमान है उसे अक्ल समझ के साथ सुनो, जिसकी वजह से ऐ पार्थ यानी अर्जुन तुम मखलूक से अपने अमाल के अज्र की तवक्का में फंसने से आज़ाद हो जाओगे। इस कल्बी ईमान के साथ अमल करने वाला कभी भी तबाही व बर्बादी से दो चार नहीं होता है और न कभी जहन्नम में गिरता है। बेशक ये कल्बी ईमान रखते हुए दीन पर थोड़ा सा अमल इंतहाई बड़े खौफ से आज़ाद भी कर देता है। ऐ कुरुनंदन यानी कौरवों की भलाई चाहने वाले अर्जुन, बेशक इस एक खुदा पर पुख्ता ईमान रखने वाले इंसान की अक्ल एक सिमत या सीधे रास्ते पर चलती है, और जो उस एक खुदा पर पुख्ता ईमान नहीं रखते उनकी अक्ल लामहदूद खुदाओं और मखलूकात से जुड़कर बहुत सारी सिमतों या रास्तों में भटक कर गुमराह और बेचैन हो जाती है। एक खुदा पर पुख्ता ईमान न रखने वाले जाहिलों या मुनाफिकों के औसाफ। एक खुदा में मुकम्मल यकसुई यानी समाधि। तीन किस्म के फितरी औसाफ यानी नेकी, बदी और गुमराही पर मबनी फितरतुश शैतान यानी फुजूर। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ऐ पार्थ यानी अर्जुन, पुख्ता ईमान न रखने वाले ये तमाम जाहिल यानी मुनाफिक लोग वेदों से गलत या इख्तिलाफ पैदा करने वाली बातों को फैलाने में हमेशा मसरूफ रहते हैं। रियाकाराना और ज़ाहिरी दीनदारी इख्तियार करते हैं, सिर्फ तकरीरें या बेरू अल्फाज कहते हैं। इस तरह इन खतीबों का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं होता कि बस खुद गर्जी या अपने नफ्स की तस्कीन में लगे रहना या ख्वाहिश परस्ती के तहत जिंदगी गुजारना, मरने के बाद जन्नत में पैदाइश के आसान रास्ते यानी शॉर्टकट बताना, सिर्फ वो अमाल करना जो उन्हें दुनिया में ही सिला, बदला और अज्र दें। दीन के नाम पर ज़ाहिरी रस्मों और त्योहारों को करने में लगे रहना, सारी जिंदगी दुनियावी ताकत, दुनियावी ऐश और शान शौकत से लुत्फ अंदोज होने की जानिब गामजन रहना वगैरह। दुनियावी ऐश व आराम और दुनियावी शान व शौकत को हासिल करने में लगे हुए लोगों का दिल व दिमाग इन ऐश व आराम की चीज़ों के लिए गुमराह होकर बेचैन व बेसुकून हो जाता है। इसीलिए इनके पास पुख्ता ईमान रखने वाला कल्ब, अक्ल व समझ और एक खुदा में यकसुई पर मुनहसिर कोई भी अमल नहीं होता। वेदों में तीन किस्म के फितरी औसाफ नेकी, बदी और गुमराही यानी फितरतुश शैतान या फुजूर के मुतालिक मज़ामीन हैं। ऐ अर्जुन, तुम इन तीनों फुजूर वाले औसाफ से दूर हो जाओ। जिद्दैन यानी राहत व मुसीबत और सेहत व बीमारी जैसे हालात से मुतासिर ना होते हुए सब्र इस्तिक़लाल के साथ खुदा के बरहक कवानीन पर कायम हो जाओ। हर वक्त अपनी फिक्र अपने तहफ़्फ़ुज़ और फ़ायदे वाले नज़रियात से ताल्लुक़ मत रखो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के सहारे जीने वाले बन जाओ। एक रूहानी खुदा यानी ब्रह्म और शिर्क यानी संग, कल्बी ईमान यानी बुद्धि योग और आमाल सालिहा यानी कर्म योग, सब्र यानी सम और अज्र यानी फल की हकीकत। लालच और दुनिया परस्ती से बचने वाला ही एक खुदा में मुकम्मल यकसुई यानी समाधि हासिल कर सकता है और उसी को ज़हनी सुकून और जन्नत हासिल होगी।
कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि जिस तरह एक मुकम्मल बड़े तालाब से तमाम जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पानी के गढ़ों से नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह वेदों के जरिए जो एक खुदा को जानता है या एक खुदा पर ईमान रखता है, उसकी तमाम जरूरतें एक खुदा से ही पूरी हो जाती हैं। अमल का इख्तियार बेशक तुम्हें है, लेकिन अमल के नताइज और अज्र पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। इसीलिए आमाल का सबब और अज्र का वसीला भी ना बनो और न ही तुम बेअमली का साथ दो। खुदा कह रहा है कि ऐ धनंजय यानी अर्जुन, खुदा के शरीकों को छोड़कर अपने अमाल का ताल्लुक एक खुदा से जोड़कर अंजाम दो। यही नहीं बल्कि कामयाबी और नाकामी और मुसीबत में भी सब्र के साथ उसके अहकामात की तामील पर जमे रहोगे तो ये सब्र वाली इबादत है। ऐ धनंजय यानी दौलत पर फतेह पाने वाले अर्जुन, बेशक बुरे अमाल यानी मुनकर से दूर रहकर अपनी अक्ल को एक खुदा के ईमान से जोड़कर अपनी अक्ल को खुदा की पनाह में देने की कोशिश करो। जो दुनिया में अपने अमाल के अजर को मकसद हयात बनाते हैं वो मोहताज और बखील होते हैं। इसलिए अपनी अक्ल, कल्ब, शऊर को एक खुदा में लगाने वाला मोमिन इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों अमाल के अजर की कैद से आज़ाद हो जाता है। इसलिए अपने शऊर को एक खुदा के ईमान से जोड़ने में लग जाओ, क्योंकि कल्बी ईमान के साथ आमाल को खुदा के अहकामात की तामील से जोड़ने में यानी अमल साले में ही इत्मीनान और अमन है। बेशक कल्ब व शऊर के साथ खुदा की इबादत में लगे हुए मोमिन आमाल से पैदा होने वाली अज्र की तवक्का को छोड़कर दुनिया में पैदाइश के बाद मिलने वाले खौफ व गम के बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं और फिर मरने के बाद जहां अजियत नहीं है उस जन्नत के आला मकाम पर पहुंच जाते हैं। जब तुम्हारी अक्ल लालच या नाशुक्री के घने जंगल से बाहर निकल आएगी, तब जो कुछ तुमने दुनिया परस्त लोगों से सुना है या समझा है और जो दुनियावी चीजें सुनने और समझने के लायक हैं, उससे तुम बेनियाज हो जाओगे। जब तुम्हारा शऊर दुनिया परस्त लोगों की बातों को सुनने से बेअसर हो जाएगा, तब तुम न भटकने वाली ठोस जमी हुई एक खुदा में यकसू न हिलने वाली खुदा के यकीन से जोड़ने वाली अक्ल यानी कल्बी ईमान हासिल कर पाओगे। मोमिन की पहचान। ख्वाहिश परस्ती के शिर्क यानी काम की वजूहात और उसके नुकसानात और इलाज। लालच, नफरत, गुस्से और तकब्बुर की हकीकत। खुदा परस्ती यानी ईमान का नतीजा दुनिया में इत्मीनान कल्ब और आखिरत में जन्नत को पाना है। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया, ऐ केशव, जिसका कल्ब खुदा के ईमान पर कायम हो, जो एक खुदा में यकसू हो, जो मुकम्मल तौर पर खुदाई अहकामात पर कायम रहता हो, उसकी जबान कैसी है? वो कैसे बोलता है? वो कैसे रहता है? वो कैसे चलता है? कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ऐ पार्थ यानी अर्जुन, जब इंसान उन तमाम ख्वाहिशात को छोड़ देता है जो नफ्स के बताए हुए रास्ते से पैदा होती हैं और जो किसी के दबाव से नहीं बल्कि अपने आप यकीनी तौर पर खुदा के ईमान को कायम करके मुतमईन हो जाता है, तब वो कल्ब व शऊर के साथ खुदा के ईमान पर कायम हो जाता है। कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि जिसका दिल मसाइब में घबराता ना हो और राहत में मगन नहीं होता और जो लालच, खौफ और गुस्से से आज़ाद होता है, वो पूरी अक्ल और समझ के साथ खुदा के ईमान पर कायम रहने वाला मोमिन या मुनी है, जो कभी किसी चीज की चाहत नहीं रखता, न उस राहत से रग़बत रखता है, न उस मुसीबत से नफरत करता है जो उसे मिली है। तो ये समझ लो कि उसका शऊर व क़ल्ब खुदा के यकीन पर इस्तिक़लाल से कायम हो गया है। और जिस तरह कछुआ अपने आज़ा को खौल के अंदर हर तरफ से समेट लेता है, उसी तरह जब इंसान तमाम ख्वाहिशात को ख्वाहिशी चीज़ों से हटा लेता है
तब उसकी अक्ल एक खुदा के ईमान पर कायम हो जाती है। जिस्म रखने वाले इंसान की नफसानी लुत्फ अंदोजी पर जबरन रोक लगाकर लुत्फ की चीजों से दूर रहने की मशक करा के मादी लुत्फ अंदोजी को रोका जा सकता है। उसके बावजूद भी उसका नफ्स काबू में नहीं आ पाता, बल्कि सबसे आला व अकबर खुदा की बसीरत से ही ख्वाहिशात नफ्स हकीकी तौर पर खत्म होती हैं। ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, ख्वाहिशात नफ्स बिलाशुबा इतनी ताकतवर हैं कि वो उस समझदार शख्स के मन को भी जबरन जेर कर लेती हैं जो नफ्स को जबरन काबू में लाने की कोशिश करता है। उन तमाम जबर करने वाली ख्वाहिशात पर काबू करते हुए अपनी अक्ल को मुझ सबसे आला खुदा पर लगाए रखो, क्योंकि बेशक जिसकी ख्वाहिशात काबू में है उसी की अक्ल खुदा के ईमान पर कायम मानी जाती है। ख्वाहिशात को मुतवज्जह करने वाली चीजें जैसे इंसान दीगर मखलूकात वगैरह में गौर फिक्र करने से जैसे जैसे उनसे लगाव या उनका साथ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंसान उन चीजों को खुदा का शरीक समझने लगता है। तब ख्वाहिश परस्ती पैदा होती है, और ख्वाहिश परस्ती के बाद ख्वाहिशी चीजें नहीं मिल पाती तो गुस्सा पैदा होता है। गुस्से से बेचैनी, उलझन और दीवानगी पैदा होती है, और उलझन और दीवानगी से सोचने की सलाहियत और याददाश्त उलझ जाती है, और सोचने की सलाहियत उलझने से अक्ल बर्बाद हो जाती है, और अक्ल की बर्बादी से इंसान खुदा के रहम करम से दूर यानी लानत ज़दा हो जाता है या खुदा की नज़र से गिर जाता है। लेकिन जो शख्स लालच और नफरत से आज़ाद है, जो शख्स खुदा के दिए हुए कवानीन और अहकामात की पैरवी से अपनी ख्वाहिशात को काबू में लाकर ख्वाहिशी चीज़ों से लुत्फानंदोज होता है, ऐसा शख्स ही खुदा के रहम करम को पा सकता है। खुदा का रहम करम पाने पर दुनिया में तमाम मसाइब होते हुए भी, नुकसान और बर्बादी होते हुए भी उसका दिल मुतमईन व पुरसुकून रहता है। बेशक ऐसे शख्स की अक्ल बहुत जल्द खुदा के ईमान पर इस्तक़लाल से कायम हो जाती है। जिस शख्स के पास खुदा के ईमान से जुड़ा हुआ कल्ब नहीं है, उस शख्स के पास मुस्तहकम मन यानी सब्र नहीं है, और वो खुदा की इबादत में लगा हुआ नहीं है। उसी तरह जिसके पास मुस्तहकम मन यानी सब्र नहीं है, उसके पास कल्बी सुकून नहीं है, और जिसके पास कल्बी सुकून ना हो उसे ऐशो आराम कैसे मिल सकता है। जिस तरह तेज हवा कश्ती को पानी में बहा ले जाती है, उसी तरह ख्वाहिशात में से जिस एक ख्वाहिश में भी बेकाबू मन अटक जाए, वही एक ख्वाहिश बिलाशुबा उसे गुमराह कर देती है, और वो ख्वाहिश उसकी अक्ल को ईमान से रोके रखती है। इसलिए ऐ कवी बाजू वाले यानी अर्जुन, जिसने तमाम ख्वाहिशात को ख्वाहिशी चीजों से रोककर ख्वाहिशात को काबू में कर लिया है, उसकी अक्ल खुदा के ईमान पर कायम हो जाती है। जो तमाम मखलूकात के लिए रात का वक्त है, वो वक्त ख्वाहिशात को काबू में रखने वाले के लिए जागने का वक्त है, और जिस वक्त तमाम मखलूकात बेदार होती हैं, वो वक्त ख्वाहिशात को काबू में रखने वाले मोमिन के लिए रात है। जिस तरह पुरशोर दरिया के गिरने के बावजूद समुंदर पुरसुकून रहता है, उसी तरह खुदा के ईमान को इस्तक़लाल से कायम रखने वाला तमाम ख्वाहिशात के दाखिले के बावजूद पुरसुकून रहता है। वो शख्स सुकून नहीं पा सकता जिसमें ख्वाहिश परस्ती है, और वो ख्वाहिशात की पैरवी में लगा हुआ है। जिस शख्स ने तमाम ख्वाहिशात की पैरवी को छोड़ दिया है, और जो इंसान ख्वाहिशात की गुलामी ना करते हुए मिल्कियत बनाने की सोच को छोड़ देता है और तकब्बुर से भी दूर है, वही शख्स हकीकी सुकून और सलामती पा सकता है। ऐ पार्थ, यही खुदा के ईमान को कायम करने का रास्ता है। इसको हासिल करके इंसान उलझन और तनाव का शिकार नहीं होता। जिंदगी के आखिरी अय्याम तक जो इस रास्ते पर कायम रहता है, वो खुदा के पुरसुकून मुकाम यानी जन्नत को हासिल कर लेता है। दूसरा बाब यानी दूसरा अध्याय खत्म हुआ।